दिल्ली और महाराष्ट्र ने कांस्य पदक जीता था महिलाओं में, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से निरंतर गेम्स आगे बढ़ती जा रही हैं और भी स्टेट्स इसमें प्रतिनिधित्व कर रही हैं, भाग ले रही हैं, तो आने वाले समय में ये खेल एक ऐसी रूपरेखा के साथ आगे उभर कर आएगा, क्योंकि सबसे फास्ट गेम है। आप देखिए, दूर से देखिए, हमारे ड्रोन से आप देख सकते हैं किस तरीके से गोल सर्कल में खिलाड़ी अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। ये दोनों ही चीजें होती हैं, अपने आप को तैयार करना अपने अगले प्रयास के लिए, अपने मैच के लिए। तो बीच पर ये एक सबसे बड़ा फायदा जिन स्टेट्स में, जैसा कि अभी मिस्टर अजीत ने अपने उद्घोषण में बताया, अभी अपने शास्त्राकार में बताया कि जहां पर समुंदर है, उनको, उन टीमों को, उन राष्ट्रों को बहुत आसानी होती है उन राज्यों को खेलने में यहां पर बीच कबड्डी, क्योंकि दूसरे राज्य जहां पर समंदर नहीं है वो यहां से रेत को लेकर जाते हैं और एक आर्टिफिशियल बीच कबड्डी के लिए एक पाला तैयार करते हैं। तो फिलहाल अब हम पहुंचते हैं अब अगले हाफ की ओर, सेकेंड हाफ की ओर। दोनों ही टीमें तैयार हैं। अब देखना होगा कि यहां पर क्या उत्तर प्रदेश अपनी अंक तालिका में अपने आप को सुनिश्चित कर पाएगा या आंध्र प्रदेश उसके इस विजय रथ को रोकने का पूर्ण प्रयास करेगा। We have to really laud what Team Andhra has been able to do thus far, because when you look at the scoreline of their first match, after losing 53-16, the kind of comeback that they have registered, each one of those 4 players have had a contribution in that, but the real superstar has been G. Lakshman, who's been their superstar raider. Something that Team Uttar Pradesh will also need to do. Their raiders have been a little bit inconsistent, especially towards the second half of that first half. If you catch my drift, that was team manager Mudita Yadav who was having a word with one of the defenders over there. Will have to bring their A game in the second half. That's Abhiram on your screen, one of the defenders. He will have a job to play. In fact, that's G. Lakshman. He has been the superstar. Will he continue the good work with his raiding, or will we see the captain Venkatesh Kayala step up? और यहाँ पर रेड डालने के लिए वेंकटेश पहले प्रयास के लिए 19-22 का स्कोर रहा था पहले फर्स्ट हाफ में। अब देखना होगा, वेंकटेश जूनियर नेशनल के में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अंडर 19 और खेलो इंडिया यूथ गेम में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। काफी अच्छा अनुभव है उनके पास। फिलहाल एक अंक जो है वो अभी सेकंड हाफ में उत्तर प्रदेश ने अपने लिए अर्जित कर लिया है। Now Kultar has the responsibility of taking his team off to a good start in the second half. Trying to create an opportunity for himself, goes too deep, but still recovers, and recovers beautifully. Winning 2 points for his team. देखिए दर्पण, जो मैं बात कर रहा था लंबी कद काठी का क्या फायदा होता है, वो यहाँ पर देखने को मिला। एंकल होल्ड किया था, मगर लॉन्ग रीच का जो फायदा है, बिल्कुल सेंटर लाइन को उन्होंने छू दिया और 2 उन्होंने अंक अर्जित किए। फिलहाल लक्ष्मण Well, another faulty raid there. Wasn't quite able to win the point. That point that Kultar won, Sanjeev ji, that reminds me, because we are in DU, we have been hearing about fishermen and their whaler so many times. In the last couple of days, we have been hearing stories. It reminds me of the whaler that a fisherman exhibits. They go deep in the sea. Of course, DU around the maritime borders. The sea in itself is a challenge, and that's what Kultar did on that occasion. He went deep in the opponent's half, and then from there he brought the point. He fished the points. Anshul trying to do something same, but he has been held and humbled by Andhra Pradesh's tenacious defense. Once again, teamwork coming to the fore. बिल्कुल, आपने ये देखिए पूरी दीवार की तरह बनकर सामने खड़े हो गए थे अंशुल के सामने और अंक नहीं लेने दिया। और ये देखिए प्रत्युत्तर कितना बढ़िया तरीके से दिया। तू डाल में पात 19-24 का स्कोर, ये पहले हाफ का। The referee once again having a word with the defenders, and another green card. Holding your ears won't do anything now. Kultar has once again been at fault.
and therefore getting reprimanded by the referee. पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आए हैं महाराष्ट्र के प्लेयर छूने की कोशिश करते हुए Right, a bit of hold in play. A timeout has been called for, and Coach Harpool Singh, his words of wisdom are needed at this stage. When again and again and again, the referees have told the players that you're at fault, you're going over the line, and you do not need to. बिल्कुल आगे की रणनीति के बारे में बता समझा रहे हैं कि क्या गलतियां, क्या त्रुटियां उनसे हुई हैं, उन त्रुटियों को पुनः ना करें क्योंकि वह आपके लिए आत्मघाती सिद्ध हो रही है। यहाँ पर फिलहाल लक्ष्मण जिनको कैच कर लिया गया। So I think it was the objection was against Nikhil, who tried to almost bend the Raiders backwards after catching hold of him. बिल्कुल आप इसमें पकड़कर घसीट नहीं सकते हैं, तो ये नियमानुसार सही नहीं होता है। तो इसका नियमों का उल्लंघन करने पर आपको दंडित भी किया जाता है, जैसे पहले कार्ड दिखाया भी गया था रेफरी के द्वारा। और ये देखिएगा कितने प्यारे थे, बहुत ही सहजता के साथ कुलतार ने अपनी रणनीति को अंजाम तक लेकर गए। 30 सेकंड की जो समय अवधि होती है वो उसका पूरा इंतजार कर रहे थे कि मैं अपना पूरा 30 सेकंड पूर्ण करूं। And one of the reasons for that is because Uttar Pradesh are in the lead, so they can bide their time. They can use up that time. और ये भी एक रणनीति का ही पार्ट होता है दर्पण, कि आप जब जीत के और अग्रसर हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को एक सेफ जोन में रखें। ज्यादा आप हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा आप चैलेंज नहीं लेते हैं, तो आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। फिलहाल कुलतार, ये तीसरी बार कुलतार यहाँ पर रेड डालने गए हैं और तीनों बार ही वह लपक लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुलतार वही गलती कर रहे हैं, बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपनी उस गलती की। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको अपने खेल में सुधार लाना पड़ेगा। राइट कॉर्नर में ना जाकर के लेफ्ट कॉर्नर में रहें, अपने आप को रखें, तो वहां से तेजी से बाहर की ओर निकल सकते हैं। Well, we have to laud Venkatesh Kayala there, the captain, for that wonderful ankle hold of his. Now, G. Lakshman, he hasn't quite got on off to a good start in this particular half, and once again an unsuccessful raid. I wonder why. Is it G. Lakshman only who's been sent into the opponent's half again and again and again? Yes, he was mighty successful in the first half, but over here, in the last 3 successive raids, he hasn't quite been able to fetch a point. Momentum is a thing. Why don't you break it by sending the captain Venkatesh Kayala? Oh, meanwhile, Anshul with that spectacular raid wins 3 points, and now the difference is widening. The gap is increasing. 32 to 22. Uttar Pradesh surging ahead. Remember, Uttar Pradesh won their first match. That was against the hosts, Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. They won it by 55-33. And if they win this particular contest, they might as well get on the verge of making it to the semi-finals. Meanwhile, for Andhra Pradesh, this is almost do or die time now. They're trailing. They lost their first match by a huge margin. And now, it is now or never. It is make it or break it. Once again, they're going with G. Lakshman. 4 successive unsuccessful raids, and yet they don't want to break the momentum. They don't want to send somebody else. It is once again G. Lakshman who's going in. बिल्कुल 10 अंकों का अंतराल हो चुका है। और अगर इस दूसरे हाफ की बात करें तो दूसरे हाफ में लगातार ये देखिएगा उत्तर प्रदेश ने अपनी क्षमताएं, दक्षताएं परिपूर्ण करते हुए दिखाई हैं, प्रस्तुत की हैं। और यहाँ पर देखिए अंशुल जो कि कैप्टन है, आप रेड डालने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए फिलहाल ये भी लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं आंध्र प्रदेश के, जिनको पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के एक प्लेयर आ चुके हैं अंशुल 22-33 का स्कोर है दर्पण, और अब देखना होगा, चपलताएं कुछ दिखानी होंगी जरूर। राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की ओर आते हुए यहाँ पर बाहर चले गए लॉबी से, मगर टच कर दिया। 1 अंक उनको प्रदान किया गया है। रेफरी ने उनको सुनिश्चित किया कि पहले उन्होंने आपको आउट कर दिया था, उसके बाद अगर आप अपने बाहर होते हैं तो वह नियमानुसार गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप रनिंग स्टाइल में बाहर की ओर जाते हो फिर अंदर हो रहे हैं। Once again with G. Lakshman. Why can't they break
this losing streak, this momentum, and send somebody else. 5 unsuccessful raids, and yet you stick to G Lakshman. Will he win this point? He does. He does. The commentators' curse this time turned out to be commentators' boon for Andhra Pradesh. बिल्कुल, ये एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर रहे हैं सभी दर्शकों के भी मन में कि दिखा रहे हैं कि देखिए हारी हुई बाजी को किस तरीके से जीता जाता है। तो क्षमताएं, दक्षताएं जो वो अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। हालांकि देखिए कदकाठी अपेक्षा करत उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों के अपेक्षा करत उनकी थोड़ी सी कम जरूर है, मगर खेल कौशल किसी से कम नहीं है। It's not the size, it's the size of the fight that you have in you, isn't it? बिल्कुल, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। फिर भी अभी भी 10 अंकों का अंतराल जरूर है, 11 अंकों का, मगर आप देखिए कि इस अंतराल को किस तरीके से कम कर पाएंगे। क्या बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर होल्ड किया, किस तरीके से ये देखिए बिल्कुल मौका नहीं दिया। हालांकि रेफरी ने उनको थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर दिया कि संभल कर खेले, अपने पास बुलाया कि आप इस तरीके से जर्सी को पकड़ नहीं सकते हैं, आप वेशभूषा को पकड़ नहीं सकते, खींच नहीं सकते हैं, ये नियम अनुसार सही नहीं होता है। तो देखिए पकड़कर आपने जर्सी से पकड़कर खींच रहे थे, मगर फिर उन्होंने प्रयास अपनी गलती को समझा और उसी को दुरुस्त किया। He's got a green card though. He's been given a green card. Meanwhile, a timeout has been called for. Coach Harpool Singh walks up to his players, tries to have a conversation, but by the looks of it, it looks like, Sanjeev ji, that the players are having the conversation and coach is just listening to them. So maybe it is because they wanted a bit of a breather. दरअसल सबसे बड़ी चीज यही है कि प्लेयरों को पता है वो अपनी कहां पर गलती कर रहे हैं, तो वो अपने आप से ही बात कर कर अपने आप को समझाते बुझाते हैं कि देखिए हमसे ये गलती हो गई है, ठीक है, आपस में मंत्रणा करते हैं किसने कहां लूज किया अपने आप को, वो चीज बताना बहुत जरूरी है। ये देखिएगा कैप्टन से मंत्रणा करते हुए, बताते समझाते हुए यहाँ पर निखिल बता रहे हैं कि यहाँ पर तुमने ये गलती करी थी, उसको सुधारो। और कैप्टन ने बड़ी सहजता के साथ गर्दन हिलाकर स्वीकार किया कि हाँ वो गलती हुई है और उसको मैं ठीक करूंगा। अब आगे की रणनीति बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करेगी, क्योंकि ये दूसरा हाफ चल रहा है और मध्यांतर के बाद अब जो स्कोर है वो 10 अंकों की बढ़त बना रखी है उत्तर प्रदेश ने। फिलहाल देखना होगा क्या उस बढ़त को बरकरार रखते हुए विजय श्री की ओर आगे अग्रसर करते हैं। 34-24 का स्कोर लक्ष्मण रेड करते हुए आंध्र प्रदेश की ओर से अपने मौके की तलाश में। ये देखना होगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यहां पर पूरे कोर्ट पर पूरी तरह से अग्रसर थे, मगर यहां पर कैच हुए। उत्तर प्रदेश ने जो रणनीति बनाई है वो पूरी तरह से क्रियान्वित की। 24-35 का स्कोर। The lead is getting to insurmountable levels now. 11 point the difference. And I wonder why you still need to persist with G Lakshman. Yes, this is a sport of stamina, but then it is also a sport of strategy. Maybe give him a breather. Maybe try and send in the captain. The captain is not going himself for the raid. He's the other raider in this side. Meanwhile, the defense is absolutely unwavering. Together, synchronized and suffocating the raider, sealing the point. बिल्कुल वेंकटेश रेड्डी जिस तरीके से आगे आए, ये देखिएगा अंशुल अंदर की और बहुत ज्यादा अत्यधिक अंदर गए थे मगर वेंकटेश रेड्डी और अभिमन्यु बिल्कुल दोनों आगे की ओर ब्लॉक किया उन्होंने, ताकि वो अपने हाथ को सेंटर लाइन से टच ना कर दे। तो ये एक रणनीति उनकी बहुत अच्छी थी। आपस में मंत्रणा किया तीनों रेफरीज ने। अगर कोई गलती है तो यहां पर पुष्टि होने के बाद 2 अंक प्रदान किए गए हैं। 10 अंकों का अभी भी अंतराल है। 25-35 का स्कोर है। रेड डालने के लिए यहां पर आ गए हैं कुलतार, उत्तर प्रदेश की ओर से सीनियर नेशनल में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और सीनियर नेशनल के कांस्य पदक विजेता भी रहे हैं। अनुभव उनके पास राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का बहुत अच्छा है। देखना होगा वो अनुभव आज कितना उनके लिए कारगर सिद्ध होता है उत्तर प्रदेश के लिए। पियास अभी तक वह वो क्षमताएं, दक्षताएं दिखा पाने में नाकामयाब रहे हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जा रही थी। यहां पर 1 अंक गवा दिया लेने की बजाय। Right, so trying to bridge the gap, our team Andhra, still it is a bridge that seems too far at this point of time. 28-35, still a long distance away. Kultar took his time and eventually was dashed down. He did try to show some desperation, but
like a fish caught in the net of a fisherman. There was no escape whatsoever. अंशुल, सबसे बड़ी चीज देखिए, आप अगर रिप्ले में अगर हमने देखा जैसा कि आंध्र प्रदेश की टीम 3-1 का लेकर चल रही है, यानी कि 3 प्लेयर जो है वो पकड़ पड़ते हैं, 2 एंकल होल्ड करते हैं, एक उसके हाथों को रोकने की कोशिश करता है और तीसरा जो है वो उसके सर के पास खड़ा हो जाता है, ताकि अगर किसी भी तरीके से उसकी बॉडी का कोई पार्ट सेंटर लाइन की ओर आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है तो वो उसको रोकने में कारगर सिद्ध हो। यानी कि चारों लोग किस तरीके से एक दीवार सी बनकर सामने खड़े होते हैं। फिलहाल यहां पर वी लक्ष्मण बैक किक का इस्तेमाल किया था उन्होंने, मगर यहां पर उसमें पूर्ण निखिल को टच नहीं कर पाए। 3 नंबर जर्सी निखिल अपने मौके की तलाश में है। देखिए किस तरीके से नहीं, यहां पर 3 अंक जरूर लेंगे, 2 अंक लेंगे। टाइम नहीं देख रहे हो तुम लोग। 2 अंक दिए गए। Wasn't deep enough for that ankle hold. A little bit of a strategic lapse there from the Uttar Pradesh captain. Anyhow, the game moves on. Kultar has a chance to redeem. They can't be complacent. The difference has now been drawn down to just 5 points. You cannot take things for granted. Kultar once again taking his time, trying to ensure that he gets the right touch. He does he? Yes, he does. And more than the touch, how he escaped the ankle hold of the Andhra Pradesh skipper was the laudable thing in that raid. सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पर एक तारीफ करूंगा आंध्र प्रदेश की टीम की। कहाँ 25-34 का स्कोर था, 10 अंकों का अंतराल था, मगर वहां पर 30-36 का स्कोर हो गया। अब 4 अंकों का ही अंतराल है और 4 मिनट से भी कम अब समय है। तो यहाँ पर इस समय लक्ष्मण रेड डालते हुए एक प्रयास जरूर किया था मगर असफल रहे। How slick was that? Just for a split second, Lakshman turned his back towards Abhishek and it was almost like complacency started setting in, and then Nikhil prowled down and did that thigh hold, not letting the raider escape. Wonderfully well done. 37-30 now. Uttar Pradesh once again have the momentum back with them. Anshul with this raid. बिल्कुल अंशुल ने देखो बिल्कुल लास्ट कोने पर ले जाने पे मजबूर हो गए हैं और यहाँ देखिए तेजी के साथ आ गए हैं। बहुत ज्यादा गलती कर दी थी, मुझे लग रहा था ये गलती उनकी आत्मघाती सिद्ध होगी और वो यहाँ पर साफ दिखी भी। बहुत अत्यधिक नीचे अंदर की ओर जा रहे थे, राइट कॉर्नर की तरफ अगर वो जाने की कोशिश करते तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। But I think we must say that Venkateshwara Reddy, who's wearing number 2 on his back, this is as much his point as much anybody else's. Because before this happened, of course you are not allowed to pull the jersey and hence Abhiram has been reprimanded. But before that happened, Venkateshwara Reddy went deep, almost leaned over the end line, and that drew the raider even deeper into the court, and hence the mistake was ultimately committed. देखो जब आप बहुत ज्यादा अंदर की ओर चले जाते हैं तो आप पीछे से अपने आते हुए आक्रमण को रोक पाने में नाकामयाब रहते हैं। तो जो प्रतिद्वंदी अपनी रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं वह पूरे तरीके से कोर्ट पर पूरा नियंत्रण कर लेते हैं और यही गलती उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। फिलहाल इस गलती से दुरुस्त होने के लिए उनको टाइम आउट लिया। टाइम आउट लेने के बाद उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में। अब देखना यह है कि क्या आंध्र प्रदेश की टीम उत्तर प्रदेश पर कुछ प्रभावशाली अपनी रणनीति का प्रयोग करेगी। जिस तरीके से लग रहा है अपनी वापसी तो बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही है आंध्र प्रदेश, मगर 6 अंक से अभी भी फिलहाल पिछड़ रही है और 3.5 मिनट शेष हैं और यही बहुत विशेष है। 38 अंक हो गए हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश के। Each point that Uttar Pradesh score at this time will feel that much more weighty, that much more heavier to Team Andhra Pradesh because the lead starts to look insurmountable after a while. अब यहाँ पर कुलतार फिलहाल अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा पूरा प्रतीत हो रहा है वह जानबूझकर इतना समय व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हम लीड पर हैं, तो अगर 1 अंक वह गवा भी देंगे तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल तो यहाँ पर लग नहीं रहा, 1 अंक उन्होंने अर्जित कर लिया है तो 39-31 का स्कोर हो गया है।
8-point the difference. Once again, Venkatesh going for the thigh hold. Perhaps should have gone for the ankle hold. That seems to be his strength. And hence, 1 point further ahead. Team Uttar Pradesh moves. Still depending on G. Lakshman, who hasn't quite exhibited the kind of form that he exhibited in the first half. And he's definitely tiring down. His body language is telling us that. बिल्कुल मात्र 2 मिनट 3 सेकंड का खेल शेष है और अब ये बहुत ज्यादा विशेष है दर्पण, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश जो है अग्रसर हो चुका है विजय श्री की ओर। तो देखना होगा क्या अपने इस विजय रथ को आगे पूर्ण अंजाम तक लेकर जाएंगे। फिलहाल अंशुल कैप्टन उत्तर प्रदेश के रेड डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। ये देखिएगा, तारीफ करनी होगी हमारे कैमरामैन की भी, कितने लॉन्ग शॉट से लेकर के आपको ड्रोन के शॉट तक दिखा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर दृश्य जो कि खेल की रोचकता को और अधिक बढ़ाता है। फिलहाल लक्ष्मण रेड डालने के लिए आंध्र प्रदेश की ओर से 32-40 का स्कोर। फिलहाल लक्ष्मण तेजी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये देखिएगा, फेंट अटैक करने की कोशिश थी यहां पर, मगर उस निखिल उस फेंट अटैक को पूर्ण अंजाम तक ले जा नहीं पाए। भ्रमित करना चाह रहे थे अपने प्रतिद्वंदी को, मगर वो भ्रमित हुए नहीं और वो बड़ी सूझबूझ के साथ सहजता से टच करके अपने पाले में चले गए। फिलहाल कुलतार रेड डालते हुए 53-40, and hence you would see him take his time. Ample time Uttar Pradesh have. Andhra Pradesh not so much. They are hoping for a miracle from now on, and this is not how the miracles will come. बिल्कुल इस तरीके से लगता तो नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, पर अंतिम 36 सेकंड शेष हैं और इन 36 सेकंड्स में चमत्कार तो खैर नामुमकिन है। मगर हाँ, फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों ही टीमों की तारीफ करनी होगी। प्रयास दोनों ने बहुत अच्छे किए हैं, मगर उत्तर प्रदेश ने अपने अथक प्रयासों से यहां पर जीत की ओर अग्रसर हो गए हैं और विजय रथ को आगे लेकर आए हैं। And still, Captain Anshul's body language exudes determination and dutifulness. And now they've sent one of the defenders to raid. It is Venkateshwara Reddy, who specializes as the left corner. Over here, he has gone for a raid because you know that the game's almost done. Comes back with an empty raid, and hence the point goes to Uttar Pradesh. Remember, every raid has to be productive. And now Nikhil, beg your pardon, that's Abhishek, who'll get a chance from Team Uttar Pradesh. So that tells you that the game is done from both teams' perspective. They're just trying out things now. And Abhishek looks like is also going to return with an empty raid. बिल्कुल, और अंतिम समय व्यतीत कर रहे हैं। ये देखिएगा, लास्ट एक अंक गवा जरूर दिया, मगर आप ये देखिए 10 अंकों से बढ़त बनाते हुए इस मैच को पूर्णतः अपनी गिरफ्त में ले लिया उत्तर प्रदेश ने और विजय श्री की ओर अग्रसर हुए, एक दूसरे के साथ गले लगते हुए। और स्वाभाविक है अपनी इस जीत का जश्न मनाना भी। Absolutely all smiles because they're one step closer to a semi-final berth. Remember, they won their first game against Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. And now they have defeated Andhra Pradesh by 43-34. You can see how close the first half was, but in the second half, Uttar Pradesh surged ahead like they put their foot on the gas pedal and never looked back. They won 2-2, very close to sealing the semi-final spot now. Meanwhile, for Andhra Pradesh, the hopes are still alive. The flame of hope is still burning, but they will have to depend on other results if they have to make it to the semi-final. Coach, meanwhile, still wearing that stern, determined expression on his face. That's Harpool Singh. It's an unwritten rule that as a coach, you're not allowed to exhibit your emotions near the field of play. बिल्कुल, ये वो जीत का जश्न जो उत्तर प्रदेश की टीम संजो कर रखना चाहती है, एक यादगार स्वरूप कि किस तरीके से उन्होंने विजय श्री की ओर अग्रसर किया और इस मुकाबले को जीतकर
अगले पायदान पर पैर रखने में, मजबूती से पैर रखने में कामयाब हुए हैं अपने प्रशिक्षकों के साथ। हरफुल जो कि बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं फिलहाल। अब ये देखिएगा, एक गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका पूरी तरह से निर्वाह किया गया। अपने प्रशिक्षक के चरण वंदना करने के उपरांत उत्तर प्रदेश की ये धरोहर, उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया कि हम अगले मैच में जो हमारा मुकाबला होगा उसमें हम एक अच्छा प्रयास करें। और ये अपने ईस्ट को याद करते हुए